will try to imagine it or understand by this lecture theatre, right? So this is a wall, straight wall, right? It is made of bricks, right? So when we are attaching brick by brick by brick, right? Amino acid by amino acid by amino acid, right? And water is being removed and peptide bonds are formed. So this straight wall is formed. It is a primary structure, right? Clear? In this straight wall, when we are creating a bend in this side, right? A bend is formed from one side primary and from other side. When one bend is formed, it becomes a secondary structure, right? Now coming on to this whole LT with roof, it will become three-dimensional or tertiary structure, right? This complete LT is a tertiary structure. Starting from one brick or one amino acid will form a straight wall. It is a primary structure, right? When bend is created in the straight chain, like a straight wall, a adjoining wall is created, it becomes a secondary structure. And when we build a roof over it and one single complex is formed like this LT, it is our tertiary structure, right? Now we have this LT1 and adjoining we have LT2 and adjoining we have our block 2, right? So all these create a quaternary structure. Now you can imagine, right? Starting from a single brick of amino acid, aligning them in a straight chain, we'll get a primary structure, right? When we create one bend or one side, like this wall, in this straight wall, we created the secondary structure, right? Please, बाद में, right? Secondary structure is created when the roof above is also created, one single unit is created like this LT, we have our tertiary structure, right? When we have multiple tertiary structures together, we will get our quaternary structure, right? So that was the reason for just amino acids, right? So today's topic is transamination, right? Deamination and metabolism of ammonia, right? So I will start with that, right? पहले तो ओवरव्यू करते हैं पुराना. So we have amino acid, right? When they keep on attaching, they will form the bigger molecule, that is our proteins, right? And amino acid undergo degradation by two mechanisms, that is our transamination and deamination, right? To form, finally liberate ammonia in the form of urea from the body, right? And during transamination, this process, keto acids are formed, right? And these keto acids are used for energy, for synthesis of glucose, for synthesis of fat, and for synthesis of non-essential amino acids, right? Clear hai? So amino acids, they continuously form peptide bond to form primary, secondary, tertiary, quaternary, and finally proteins are formed, right? The proteins, they undergo degradation via transamination and deamination. We'll discuss them in detail now, okay? To finally form ammonia, and ammonia is liberated as urea from the body. And beside these keto acids are formed, these keto acids are used for energy generation, glucose, fat, and synthesis of non-essential amino acids, right? Now, so what is transamination? Just try to understand the simple meaning of word divided into two parts. Transamination. Transamination.
Anybody who can understand now? It is actually transfer from transfer of amino acid from amino group, sorry, from amino acid to keto acid is known as transamination, right? And it occurs in a two pairs, right? A pair of amino acid and a pair of keto acid, right? And what are the salient features? Most important is that it is reversible and the enzymes used are transaminases. Transaminases. Name any two transaminases which we discussed in LFT. AST and ALT. Aspartate transaminase and alanine transaminase. ALT क्या था? SGPT. Right? And these transaminases are useful as diagnostic markers, right? Used in, right? For example, this is elevated in hepatitis, right? And this in MI. Though it is not a specific marker, we know, but you can just have an idea about that, right? And remember one thing, that transamination is the initiating point for amino acid metabolism, right? You saw this diagram. जब हम ब्रेक डाउन करना है तो वी स्टार्ट फ्रॉम ट्रांसएमिनेशन, दैट इज द इनिशियल पॉइंट फॉर मेटाबॉलिज्म, राइट? एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय ट्रांसएमिनेजेस और माइनोट्रांसफरेजेस, दोनों की हमने एसजीओटी एंड एसजीपीटी। एसजीओटी कौन सा था? एएसटी। एसजीपीटी कौन सा था? एएलटी, राइट? एंड दिस इज द समरी. वी हैव अमीनो ग्रुप in amino acid 1 and it is transferred to keto acid, and finally in return we got amino acid 2 जहाँ amino group transfer हो गया और keto में उधर आ गया. तो we group use two groups, two amino acids are there, 1 and 2, and 1 and 2 keto acids are there, right? So but let's discuss definition of transfer of amino group from amino acid to keto acid is known as transamination, right? It is the starting point of amino acid metabolism, right? And transfer of amino group from one amino acid to keto acid is known as transamination, right? And this requires important vitamin coenzyme form of vitamin B6, that is pyridoxal phosphate, right? All transaminases require pyridoxal phosphate as coenzyme, right? You will get a multiple choice in PG and all vitamins will be written there, but only B6 derivative, that is pyridoxal phosphate, is involved in transamination, right? Second, दोनों मैंने बता दिए, AST and ALT. AST क्या था? aspartate transaminase, and ALT SGPT, right? And there is no free ammonia liberated, only the transfer of amino groups occur, right? Free ammonia नहीं liberate होती, only transfer of amino groups occur, and transamination is reversible, right? And it is very important for distribution of amino acids and production of non-essential amino acids. इससे बनते हैं जो excess amino acids है, they are diverted for energy production, right? और कुछ पार्टिसिपेट नहीं करते, वो कौन से हैं? लाइसिन, थ्रियोनाइन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ऑल पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये चार डू नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसएमिनेशन, राइट? सीरम ट्रांसएमिनेसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक, दोनों बता दिए मैंने. अब आगे इसकी दो स्टेजेस होंगी इसकी, राइट? हमने तो क्या डेफिनेशन थी? एनीबॉडी हु कैन रिवाइज मी?
Anybody? Babishan, can you recall what is transamination? Any single person. Transfer of amino group from, ऐसे ही बोल रहे हैं सारे. एक बंदा बोलेगा कोई? Anybody who wish to stand? हाँ बोल बेटा. Transfer of amino group from keto acid to amino acid. ना करेक्शन करो ना इसकी. यस इतना क्या डिफिकल्ट कर दिया, ये देख लो. ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड, राइट. तो अमाइनो ग्रुप, अब ये देखो डायग्राम पहले. ये है प्रॉपर रिएक्शन. 2 स्टेजेस बताई ना मैंने अभी, 2 स्टेजेस में होता है. तो दिस इज एलानिन. बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ. दिस इज अवर एलानिन एंड दिस इज पायरुवेट. एलानिन कंटेन्स amino group. What was definition? Transfer of amino group from amino acid to keto acid, right? Amino group is there, alanine. तो एंजाइम कौन सा यूज हुआ? ग्लूटामेट, पायरुवेट, ट्रांसएमिनेस. तो बन गया पायरुवेट. तो अमाइनो ग्रुप यहां से पायरुवेट बन रहा है ना. तो मैंने बोला वी यूज B6 एज कोएंजाइम, राइट. तो पारिडॉक्सल फॉस्फेट है हमारे पास. देखो पारिडॉक्सल फॉस्फेट इज देयर, राइट. उसने क्या करना है? अलानिन से अमाइनो ग्रुप लेना है यहां से, राइट. तो पारिडॉक्सल फॉस्फेट जब अमाइनो ग्रुप कैरी करेगा तो क्या बनेगा? पारिडॉक्सल अमाइन बन जाएगा. पारिडॉक्सल अमाइन फॉस्फेट बन गया. अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अलानिन, ठीक था. पिंक कलर देखो, पिंक वाला, राइट. उसने उठाया पारिडॉक्सल फॉस्फेट ने उसका अमाइनो ग्रुप उठाया तो बन गया पारिडॉक्सामाइन फॉस्फेट. तो अब अमाइनो ग्रुप जो यहां था अलानिन में वो आ गया इसमें पारिडॉक्सामाइन फॉस्फेट में. क्लियर. तो अलानिन से क्या बन गया? पायरुवेट. अमाइनो ग्रुप से बन गया कीटो ग्रुप, राइट. अब ये पारिडॉक्सामाइन फॉस्फेट है, दोबारा बनाएगा. वी हैव अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज देयर. इसमें कीटो ग्रुप है, राइट. और ये इसको डोनेट करेगा जब एंजाइम यूज होगा ग्लूटामेट, पायरुवेट, ट्रांसएमिनेस, राइट. तो इसमें जो अमाइनो ग्रुप आया वो वापस इसमें ग्लूटामेट में आ जाएगा, राइट. तो जितना भी अमाइनो ग्रुप निकलता है ड्यूरिंग ब्रेकडाउन वो स्टोर कहां जाता है? फाइनली ग्लूटामेट. ग्लूटामेट से फाइनली क्या होगा? डीएमिनेशन होगी और अमाइनो ग्रुप निकलेगा, फिर वो यूरिया साइकिल में जाएगा, राइट. तो ये प्रॉपर 2 स्टेप्स हैं. जैसे एलानिन था, पायरुवेट बना और दोबारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ग्लूटामेट बना. मैंने बोला वी यूज 2 पेयर ऑफ अमाइनो एसिड एंड 2 कीटो एसिड, राइट. 1 अमाइनो 1 कीटो 2 अमाइनो ग्रुप्स 2 कीटो ग्रुप्स, राइट. एंड पारिडॉक्सल फॉस्फेट वाज देयर. तो अमाइनो ग्रुप उसने उठाया अलानिन का तो बन गया पारिडॉक्सामाइन. अमाइन बन गई ना, अमाइनो ग्रुप उठा लिया. तो अब ये दोबारा रिन्यू कैसे होगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट को कीटो ग्रुप है, उसने उठाया तो बन गया ग्लूटामेट. तो ये रिन्यू होगा ऐसे साइकिल, राइट. और इसका हमने किया भी दोनों. AST is mostly elevated in cardiac disorders and ALT is increase in liver diseases like viral hepatitis, right. डीएमिनेशन का क्या मीनिंग होता है? रिमूवल ऑफ as ammonia. The removal of amino group from amino acids as ammonia is deamination, right. Transamination क्या हुई थी? Involves the shuffling of amino groups from among the amino acids, right. उसमें हमने amino group shuffle किए, लेकिन deamination में there is liberation of ammonia for urea synthesis, right. And simultaneously the carbon skeleton minus is converted to keto acid, right. और डीएमिनेशन आगे 2 टाइप्स की होती है. वन इज ऑक्सीडेटिव एंड अदर इज नॉन ऑक्सीडेटिव, राइट. बोथ ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन दे गो हैंड इन हैंड, इकट्ठे जाती हैं. तो कभी इसको लिए दे यूज अलग सेपरेट टर्म दैट इज ट्रांस डीएमिनेशन, राइट. तो जस्ट रिवाइज, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड इज नोन एज ट्रांसएमिनेशन, right. और removal of amino group as ammonia is known as deamination,
जो अमोनिया निकलेगी वो फिर कहाँ जाएगी? यूरिया साइकिल में, ताकि हम यूरिया बनाएं। पहले आ गई ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, राइट। कहाँ कहाँ होती है? लिवर एंड किडनी में। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया फ्रॉम माइनो ग्रुप्स ऑफ माइनो से कपल्ड विद ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेटिव है तो उसमें कपल्ड विद ऑक्सीडेशन होगी। रिमूवल ऑफ माइनो ग्रुप is there but it is coupled with oxidation, that is why it is known as oxidative deamination. When it is not coupled with oxidation, it is known as non-oxidative. When it is coupled with oxidation, it is known as oxidative, right? The purpose of oxidative deamination is to provide ammonia for urea synthesis, right? तो कैसे रिवाइज करोगे? जो हमने स्टार्टिंग में एक चार्ट किया था, सो वी हैव प्रोटीन्स, राइट, वी हैव टू मेटाबोलाइज देम, राइट। इन ऑर्डर टू मेटाबोलाइज देम वी यूज फर्स्ट टू स्टेप्स, दैट इज ट्रांसएमिनेशन एंड इट इज कपल्ड विद डीएमिनेशन, राइट। तो ट्रांसएमिनेशन की थी, क्या थी? ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप था, क्या था अभी याद नहीं हो रहा सबको, सो के आए हैं। ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड, राइट, एंड removal of amino group as ammonia for urea synthesis is known as deamination, right? तो यूरिया क्या होता है? यूरिया is end product of amino acid metabolism. If you have to define urea in 3, 4, 5 words, end product of amino acid metabolism, right? We have amino acids. They keep on forming peptide bonds by a primary, secondary, tertiary and quaternary structure, right, to finally form proteins, right. Now we have to metabolize protein, right. Proteins slowly break करेंगे to finally form urea. Urea is end product of, how will you define urea? Urea is end product of amino acid metabolism, right. During the breakdown of protein, the first step is transamination and the second is deamination, right. Transamination is transfer of amino group from amino acid to keto acid. Deamination is removal of amino group as ammonia, right, and deamination is of two types, oxidative and non-oxidative, right, and ammonia is finally liberated via urea cycle, clear, and urea is end product of amino acid metabolism, right. अब आगे चले, एंड जो अमाइनो ग्रुप तो निकल गए, कार्बन स्केलेटन का क्या होगा जो बचा? वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? स्टार्टिंग में डायग्राम कराई थी, चलो अभी पहले इतना करूँ। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज का रोल क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन द अमाइनो ग्रुप ऑफ मोस्ट अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसफर टू अल्फा कीटोग्लूटारेट टू प्रोड्यूस ग्लूटामेट, right. Glutamate serve as collection center of amino acid in the biological system, right. प्रोटीन ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो फाइनली क्या बनना है? यूरिया। जब ब्रेक डाउन करनी है तो दो स्टेप्स है, पहले फर्स्ट इज ट्रांसएमिनेशन एंड सेकंड इज डीएमिनेशन, राइट. और ट्रांसएमिनेशन क्या थी? ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड. डीएमिनेशन रिमूवल अमाइनो ग्रुप एज अमोनिया, वो फाइनली वो यूरिया साइकिल में जाएगा.
ठीक है, तो इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन अमाइनो ग्रुप ऑफ मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसफर टू अल्फा कीटोग्लूटारेट में जाता है टू प्रोड्यूस ग्लूटामेट। जो अमाइनो ग्रुप निकल रहा है ना, इसमें से वो कहां जा रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट में जा रहा है, तो फिर फाइनली कहां ग्लूटामेट में जाएगा। तो ग्लूटामेट इज स्टोर हाउस, राइट। ग्लूटामेट सर्व एज कलेक्शन सेंटर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। जितने अमाइनो ग्रुप निकल रहे हैं ना, वो फाइनली कहां जा रहे हैं, अल्फा कीटोग्लूटारेट से ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट इज स्टोर हाउस ऑफ अमाइनो ग्रुप्स, राइट। ग्लूटामेट रैपिडली अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कैटलाइज्ड बाय ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज टू लिबरेट अमोनिया, राइट। इसको कैसे देखेंगे, एक बार दोबारा देखें। ठीक है, ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो अमाइनो ग्रुप निकल रहे हैं, ये किस पे जाएंगे, अल्फा कीटोग्लूटारेट से फाइनली जाएंगे ग्लूटामेट। सो इट इज द स्टोर हाउस ऑफ अमाइनो ग्रुप्स, राइट। ग्लूटामेट से फिर फाइनली क्या होगा, वी विल हैव ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज रिएक्शन। तो उससे क्या निकला, अमोनिया निकलेगी। तो अमोनिया कहां जाएगी फिर, यूरिया साइकिल। तो ऐसे ब्रेकडाउन होगा, राइट। ग्लूटामेट रैपिडली अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कैटलाइज्ड बाय ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज टू लिबरेट अमोनिया, right। enzyme is unique, it can utilize either NAD or NADP as coenzyme use करेगा, right। glutamate dehydrogenase reaction is important as it reversible links with glutamate metabolism with TCA cycle से भी लिंक करता है। कैसे, अब इसमें हम यूज कर रहे हैं वाया अमाइनो ग्रुप गया अल्फा कीटोग्लूटारेट से, अल्फा कीटोग्लूटारेट से गया ग्लूटामेट में, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज रिएक्शन हुआ तो बन गया अमोनिया, अमोनिया फिर आगे यूरिया से एक्सक्रीट हुआ। लेकिन यहां यूज हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये किसका कंपोनेंट है, टीसीए साइकिल का। बहुत नींद आई रे भाई, पानी पिया, वो पानी पड़ा, पी ले पी ले, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, पानी पी ले। हाँ, तो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज इज इन्वॉल्वड इन बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। प्लीज बॉडी शेप ना करो, कल उसने बहुत मेहनत की है, ये भी तो अंडरस्टैंड करो, है ना। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसको तो पहले, और इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कैसे करते हैं, इट इज ए जिंक कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। इसकी क्वालिटीज लिख लो, इट इज ए जिंक कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम with 6 identical units, molecular weight 56,000, right, and it is controlled by allostatic regulation। GTP and ATP इनहिबिट करते हैं इसको, लेकिन GDP और ADP एक्टिवेट करते हैं ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज को, राइट। और अगर आपने प्रोटीन रिच मील खाई, लिवर ग्लूटामेट लेवल इज एलिवेटेड, इट इज कन्वर्टेड टू अल्फा कीटोग्लूटारेट विद लिबरेशन ऑफ अमोनिया। अगर सेलुलर एनर्जी लेवल्स आर लो, द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूटामेट इज इंक्रीज टू प्रोवाइड अल्फा कीटोग्लूटारेट व्हिच एंटर टीसीए साइकिल टू लिबरेट एनर्जी, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छी तरह समझने वाली है, तभी वो उसकी अमोनिया टॉक्सिसिटी समझ आएगी। जो अनकॉन्शियसनेस हो जाती है ना, इसमें ये रिएक्शन से निकलता है, राइट। अगर एनर्जी लेवल लो है तो डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूटामेट इज इंक्रीज्ड। अगर एनर्जी लो है ना, तो इसका डिग्रेडेशन इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होएगा तो क्या बनेगा, मोर अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो ये आगे क्या चलाएगा, टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल से क्या आएगी, एनर्जी। इसमें एनर्जी कम है आज, टीसीए साइकिल किसका फास्ट करना पड़ेगा। क्लियर है सबको,
तो अब कैसे करोगे इसको, एक डायग्राम और दिखाते हैं। ये तो हो गया, सबको क्लियर है रेगुलेशन ऑक्सीडेटिव की। अगर L- ऑक्सीडेज है और D- ऑक्सीडेज है तो दे फ्लेवोप्रोटीन है पोजेसिंग FMN एंड FADS एक्टिविटी, राइट, और दे एक्ट ऑन कॉरस्पॉन्डिंग D और L, राइट। तो फाइनली रिएक्शन में ऐसे आएगा, अगर L- ऑक्सीडेज है तो फाइनली कीटो एसिड ही बनेगा, राइट। तो FMN से FMNH2 बना, और इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कैटालिसिस वाला रिएक्शन आएगा, फाइनली वाटर लिबरेट होगा, राइट। और ये ग्लूटामेट है, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट है। ग्लूटामेट मैंने बोला था स्टोर हाउस ऑफ अमीनो ग्रुप्स हैं। जो भी हमने पहले प्रोटीन की ब्रेकडाउन स्टार्ट की, पहला स्टेप क्या था, ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड टू कीटो एसिड, राइट, दिस इज ट्रांसएमिनेशन। लेकिन उसके बाद हमने अमीनो ग्रुप को रिमूव करना है, तो अमीनो ग्रुप कैसे रिमूव करते हैं, डीएमिनेशन से। डीएमिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑक्सीडेटिव, इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नॉन ऑक्सीडेटिव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो जो अमीनो ग्रुप निकलेगा वो कहाँ जाएगा, दैट इज ट्रांसफर टू ग्लूटामेट। ग्लूटामेट इज स्टोर हाउस ऑफ अमीनो ग्रुप, राइट। तो यहाँ स्टोर हो रहा है ग्लूटामेट में अमीनो ग्रुप, तो ये फाइनली बनाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेगा, तो अमोनिया लिबरेट हो जाएगी। ये अमोनिया कहाँ जाएगी, यूरिया सिंथेसिस में, राइट। तो D- एसिड है हमारे पास, D- ऑक्सीडेज आया तो अल्फा कीटो एसिड बने, राइट। और जो नहीं बन सकते वो L में कैसे कन्वर्ट होंगे, अगर प्लांट खाए, प्लांट्स में D होते हैं, D, तो वो FAD वाला रिएक्शन होगा तो बन जाएगा अल्फा कीटो एसिड, कीटो एसिड से फिर ट्रांसएमिनेशन से बन जाएगा L- एसिड, वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, राइट। और कीटो एसिड कहाँ यूज होंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में, ग्लूकोज और फैट प्रोडक्शन में, क्लियर। अब आ गई नॉन ऑक्सीडेटिव। नॉन ऑक्सीडेटिव मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो पहले क्या यूज करेंगे इसमें, अमीनो एसिड डिहाइड्रेटेज। इसमें कौन कौन से यूज होते हैं, सिराइन, 309 होमोसेरीन आर हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड्स, दे अंडरगो नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कैटलाइज्ड बाय किस, कौन कराता है, पायरिडक्सल फॉस्फेट डिपेंडेंट डिहाइड्रेटेज, राइट। पहली एग्जांपल हो गई इसकी हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड्स वाली, वो होंगे। सेकंड आ गई डी सल्फाइड्रेस वाली, इसमें सल्फर वाले अमीनो एसिड है जो सिस्टीन और होमोसिस्टीन अंडरगो डीएमिनेशन कपल्ड विद डी सल्फाइड्रेशन टू गिव कीटो एसिड, ये सेकंड रिएक्शन है। और थर्ड आ गया हिस्टिडीन की, हिस्टिडेज आएगा एंजाइम, हिस्टिडीन पे काम करेगा तो लिबरेट करेगा अमोनिया, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, राइट। अब आ गया मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया प्रॉपर। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया अकर्स इन द फ्रॉम द, तो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है आगे अमोनिया, ट्रांसएमिनेशन में, डीएमिनेशन में, बायोजेनिक माइस में, और माइनो ग्रुप कहाँ यूज होगा, प्रिंस और पिरिमिडीन में, और बाय एक्शन ऑफ इंटरसेलुलर बैक्टीरिया, यूरेस और यूरिया, राइट। ये सब सोर्सेज से बन सकती है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, अमोनिया टॉक्सिक होती है बॉडी को, होती है ना, लेकिन इसका लेवल बहुत क्लोजली मेंटेन होता है, लो लेवल पे 15 to 45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, राइट, बिकॉज बॉडी हैज एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर अमोनिया ट्रांसपोर्ट, राइट। ट्रांसपोर्ट अमोनिया बिटवीन वेरियस टिश्यूज, लिवर मोस्टली अकर बाय ग्लूटामीन और अलालीन और नॉट एज फ्री अमोनिया। ग्लूटामीन जो मैंने बोला, जो अमीनो निकलता है ट्रांसएमिनेशन करके डीएम अमीनो ग्रुप निकलता है, वो फाइनली ग्लूटामेट में जाता है, ग्लूटामेट से ट्रांसफर होता है, फ्री अमोनिया इज नेवर ट्रांसपोर्टेड, राइट। तो फिर फाइनली क्या बनेगा, पहले बता दिया ग्लूटामेट इज स्टोर हाउस ऑफ अमोनिया, जितने अमीनो ग्रुप निकलेंगे वो ग्लूटामेट में जाएंगे, राइट। एंड इट हाईएस्ट कंसंट्रेशन कितनी है, 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन डर्ट्स। ग्लूटामीन सर्व एज स्टोरेज एंड ट्रांसफर फॉर्म ऑफ अमोनिया। its synthesis occur in liver, brain and muscle, right. Ammonia is removed from the brain predominantly by glutamine, right. Glutamine synthetase mitochondrial enzyme responsible for synthesis of glutamine from glutamate and ammonia. Glutamine synthetase बनाएगा, right. This is a unidirectional reaction and requires ATP and magnesium. Glutamine can be deaminated by hydrolysis to release ammonia by glutamine is an enzyme mostly found in kidney and intestinal cells,
फंक्शंस क्या है अमोनिया के? वेस्ट प्रोडक्ट तो है, लेकिन उसके अलावा इट इज इन्वॉल्व डायरेक्टली वाया ग्लूटामेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी कंपाउंड्स इन द बॉडी। ग्लूटामेट से और कंपाउंड बना सकता है, लाइक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, पुरीन्स, पिरिमिडीन, अमीनो शुगर, एस्पेराजीन। अमोनियम आइंस कहाँ यूज होते हैं? एसिड बेस बैलेंस रेगुलेशन में, राइट। कुणाल गुप्ता बहुत घड़ी देख रहा है, इतना बोर हो रहा है, बाहर चले जा, पानी पिया है। तो डिस्पोजल कैसे होगी अमोनिया की? जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ ह्यूमंस का या एनिमल्स का, अमोनिया की डिस्पोजल का पैटर्न चेंज होता गया, राइट। तो 3 कैटेगरी थी पहले स्टार्टिंग में, जो +1 2 में पढ़ा है, अमोनियोटैलिक, यूरिकोटैलिक और यूरोटैलिक। अमोनियोटैलिक में क्या होता है? एक्वेटिक एनिमल फिश होती है, डिस्पोज ऑफ अमोनिया इनटू द सराउंडिंग, बट डायरेक्टली डिस्पोज कर देती है। देन आ गए यूरिकोटैलिक, हमारे बर्ड्स, वो यूरिक एसिड सक्रीट करते हैं। एंड फाइनली फिर हमारे ह्यूमंस आ गए यूरियोटैलिक, दे कैन कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया। यूरिया इज नॉन टॉक्सिक सॉल्युबल कंपाउंड एंड इजिली एक्सक्रीटेड, राइट। हमारी एवोल्यूशन सबसे ज्यादा हुई, पहले आई फिशिस। फिशिस ने कैसे एक्सक्रीट किया? सीधा यूरिया सीधा एक्सक्रीट कर दिया अमोनिया को, तो वो कौन सी कैटेगरी में आई? अमोनियोटैलिक में, ठीक है। फिर आ गए बर्ड्स या रेप्टाइल्स, उन्होंने यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया, फिर एक्सक्रीट किया। ह्यूमंस ने क्या किया? अमोनिया को सेफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, यूरिया में, फिर एक्सक्रीट किया। तो हम आ गए यूरियोटैलिक में, ठीक है। टॉक्सिसिटी, मार्जिनल एलिवेशन भी है ना, वो दैट इज हार्मफुल टू द ब्रेन व्हेन इट accumulates in the body resulting slurring of speech, blurring of vision and tremors. slurring of speech हो जाएगी, blurring of vision and tremors, it may lead finally lead to death भी हो सकती है, और अगर साइल नहीं हो तो कोमा भी होगा, राइट। हाइपरएमोनिमिया, नॉर्मल लेवल कितना है? 15 to 40, लेकिन अगर बढ़ जाए तो कोई भी 5 एंजाइम यूरिया साइकिल के हैं, वो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे यूरिया साइकिल, तो अगर कोई भी बढ़ेगा तो लेवल बढ़ेगा तो दैट इट इज टॉक्सिक, इट कैन कॉज हेपेटिक कोमा, मेंटल रिटार्डेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, राइट। एक्वायर्ड हाइपरएमोनिमिया कहाँ से हो सकता है? अगर आप अल्कोहलिक ज्यादा हो, जहाँ हेपेटाइटिस है तो लिवर खराब हो रहा है, उसकी वजह से अमोनिया टॉक्सिसिटी हो रही है, ठीक है। अब आगे चले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, पीजी में भी आएगा, 5 मार्क्स का भी आएगा, टॉक्सिसिटी का मैकेनिज्म क्या है, राइट। तो हमने किया था अल्फा कीटोग्लूटारेट से अमोनिया मिली तो बना ग्लूटामेट, राइट। तो ग्लूटामेट क्या था? स्टोर हाउस था ना अमोनिया का। तो रिएक्शन कैसे हो रहा था? NADPH से NADP बना था, राइट। और इसको कराता कौन है? ग्लूटामेट डिहाइड्रेज वाला रिएक्शन, राइट। तो कैसे होगा? अगर अमोनिया ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा? डायग्राम को ध्यान से देखो। अकम्युलेशन अमोनिया शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। अगर अमोनिया बढ़ेगी तो क्या होगा? ये ज्यादा रिएक्शन होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट से, तो फिर फाइनली ग्लूटामेट ज्यादा बनेगा। अगर ग्लूटामेट ज्यादा बनेगा तो क्या होगा? अकम्युलेशन अमोनिया शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट विद मोर ग्लूटामेट फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? हैंस द यूटिलाइजेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो ग्लूटामेट आगे क्या यूज करेगा? अल्फा, जितना ये डायरेक्शन ज्यादा उधर जाएगा तो अल्फा कीटोग्लूटारेट भी ज्यादा यूज होगा। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट ज्यादा यूज हो गया तो ये कहां से आ रहा था? TCA साइकिल से। अब ये कम हो गया तो TCA साइकिल नहीं चलेगा, ठीक। TCA साइकिल नहीं चलेगा तो एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो क्या सिम्टम आएंगे? स्लरिंग ऑफ स्पीच, ब्लरिंग ऑफ विजन, कोमा, डेथ। वो ये रीजन है, ये रिएक्शन सारी टॉक्सिसिटी एक्सप्लेन करता है। अमोनिया कम्युलेट हो गई, इक्विलिब्रियम कहाँ गया? राइट में, ग्लूटामेट बनेगा, राइट। ग्लूटामेट क्यों बन रहा है? क्योंकि अमोनिया रिएक्ट कर रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट से, और अल्फा कीटोग्लूटारेट किसका कंपोनेंट है? TCA साइकिल का। और TCA साइकिल क्या बनाता है? एनर्जी। लेकिन अब अब एनर्जी नहीं बन रही क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटारेट डिप्लीट हो गया, क्योंकि अमोनिया ज्यादा थी तो ये ज्यादा यूज हो गया, ये ज्यादा यूज हो गया तो TCA साइकिल डिप्लीट हो गया। डिप्लीट हो गया तो फिर एनर्जी डाउन, कोमा, वो सारे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारेट इज द की इंटरमीडिएट इन TCA साइकिल एंड डिप्लीटेड लेवल इंपेयर द TCA cycle, right? Net result is that the production of ATP by brain is decreased. The toxic effects of ammonia on brain are due to impairment of ATP formation. इसको एक बार रिवाइज करें। अल्फा कीटोग्लूटारेट है, अमोनिया से मिला,
फिर बना ग्लूटामेट, राइट। ये रिएक्शन कौन सा एंजाइम करा रहा है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? वी आर हैविंग टॉक्सिसिटी, राइट। तो अमोनिया का लेवल बढ़ गया। अमोनिया बढ़ गई है तो ये अल्फा कीटोग्लूटारेट से ज़्यादा रिएक्शन करेगी, तभी ये ग्लूटामेट बनेगा, तो वो बॉडी से निकलेगी। तो इसके साथ कंबाइन करने की वजह से ये भी यूज हो गया ज़्यादा, अल्फा कीटोग्लूटारेट ज़्यादा यूज होगा क्योंकि उन्हें अमोनिया बॉडी से निकालनी है, राइट। अब ये हो रहा है यूज, तो ये कहाँ से आ रहा है? TCA साइकिल से, राइट। अब ये नहीं, अब ये निकालने के चक्कर में अमोनिया को हमने अल्फा कीटोग्लूटारेट ज़्यादा यूज कर लिया। अब ये ज़्यादा यूज हो गया तो ये हो गया लेस। अब ये लेस हो गया तो ये किसका कंपोनेंट है? TCA साइकिल का। अब TCA साइकिल नहीं चलेगा तो वो हो जाएगा लो, ये लो हो जाएगा तो ATP एनर्जी हो जाएगी लो। तो that explain the symptoms of toxicity। आई समझ? ट्रैपिंग कैसे, अगर किसी को टॉक्सिसिटी हो गई है, ट्रीटमेंट कैसे डालोगे? तो उसमें हम यूज करते हैं 2 ड्रग्स, सोडियम बेंजोएट एंड फेनाइल लैक्टेट। ये क्या करते हैं? These compound can respectively condense with glycine and glutamate to form water soluble product and can be easily excreted। सोडियम बेंजोएट एंड फिनाइल लैक्टेट क्या करेंगे? ग्लाइसिन से कंडेंस करके और ग्लूटामेट से वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट बना देंगे, दैट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, राइट। बाय दिस वे अमोनिया कैन बी ट्रैप्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और सम केसेस में हमें हीमोडायलिसिस भी करना पड़ सकता है। एक्यूट टॉक्सिसिटी हो गई कुछ तो उसमें हमें हीमोडायलिसिस भी करना पड़ सकता है। हेपेटिक कोमा अगर हो गया तो मैनेजमेंट कैसे करोगे? हमने किया स्टार्टिंग में, व्हाट इज यूरिया? यूरिया इज एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो जितना भी यूरिया बॉडी में आ रहा है कहाँ से आ रहा है? जो हम अमाइनो एसिड खा रहे हैं। अमाइनो एसिड खा रहे हैं मतलब जो हम प्रोटीन खा रहे हैं। अगर किसी को टॉक्सिसिटी हो गई है, जहाँ हेपेटिक कोमा में चला गया है, तो लिवर पे लोड पड़ रहा है ना उस पर, है ना। तो अगर उसको हम प्रोटीन दे ही ना, प्रोटीन दो ही ना, फिर क्या होगा? ऑल इज वेल। हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम बॉडी में दे रहे हैं जिससे आगे टॉक्सिसिटी आ रही है ना, तो वो चीज़ ही नहीं रहेगी बॉडी में, तो अपने आप बॉडी ठीक होएगी। तो अब क्या किया हमने? रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोटीन डाइट करो टोटल। उसको कार्बोहाइड्रेट दो ना, उसकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट पे चलाओ। डोंट गिव हिम एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन खाओगे तो यूरिया बनेगा ना, फाइनली अमोनिया बनेगा, फिर यूरिया बनेगा। अगर प्रोटीन खाओगे नहीं तो ना अमोनिया बनेगा ना यूरिया बनेगा, ठीक है। यूज ऑफ एंटीबायोटिक फॉर बाउल डिसइंफेक्शन करोगे उसकी, और प्रॉपर मेंटेनेंस करोगे उसकी एसिड बेस बैलेंस की, और यूज एनी कोई हिपैटोटॉक्सिक ड्रग नहीं यूज करोगे, राइट। क्लियर है? और कोमा में क्या होगा? इंक्लूड डिस्फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कन्वल्शंस एंड इंपेयरमेंट ऑफ लिवर फंक्शन होगा, और लेटर में रिजल्ट इन हिपैटोमेगाली, जॉन्डस, एडीमा और हैमरेज। ये सारी सिम्टम्स एक साथ लिंक आएंगे बाद में, ठीक है। तो फाइनली अगर हाइपरअमोनिया हो तो दैट विल लीड टू हेपेटिक कोमा, राइट। क्लियर है?